Good morning, everyone. So today's lesson of polynomial. So what we'll be doing today is cubic polynomials. हम cubic polynomial के बारे में जानेंगे कि what are cubic polynomials, uh, why we call them cubic. Then we'll understand कि how to find zeros of that cubic polynomial. Then we move towards how to establish the relationship between the zeros like we did for quadratic equation. So if you remember, when we used to have a quadratic equation, so we used to establish a relationship between the zeros. So similar fashion, in similar manner, we will be establishing relation between the cubic polynomial. First of all, so today's lesson will focus on cubic polynomial. First of all, we'll try to know what is a cubic polynomial. Then our focus will go to finding zeros of this, finding zeros of cubic polynomial, which you have covered these topics in class 9th also, both of them. And then relationship between the zeros and coefficients. किसके coefficient? Of polynomial, of cubic polynomial. So this will be the run through for today's chapter. So we'll be covering these three topics in relation to cubic polynomial. Okay enough for everyone? So first concept, help me out with what is cubic polynomial. What is a cubic polynomial? Who will tell me? Any idea? Good. One of the responses, degree is 3. Any other response? So everyone agrees with this concept that degree of these polynomials are 3. So a polynomial who is having degree 3 are called cubic. So general form will be general form. They generally are written in this form: ax cube. So they are written like ax cube plus bx square plus cx plus d. Got it, everyone? So this is the general form of a polynomial px, which is of degree 3 and is called cubic. What are the conditions where a, b, c and d are real numbers, and what should not be equals to 0? Tell me, which value should not be equals to 0? a should not be equals to 0, because अगर a 0 हो गया तो polynomial कैसा हो जाएगा? Just imagine the situation, अगर a को हम 0 रख दे तो ये वैल्यू तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. So we will be left with bx square plus cx plus d. So क्या बन जाएगा ये? This remaining portion will be called कैसा polynomial? Yes, this will become quadratic polynomial. So in order, in a way that it should not become a quadratic polynomial, we have to stick this to this idea that a should not be equals to 0. That is, the coefficient of variable with highest degree, which is 3, should not be equals to 0. So I hope ये वाला सबको समझ आया why we have said this. So what we concluded, a should not be equals to 0 in order to
मेक इट, अगर x इक्वल्स टू 0 वाला जो अभी किसी ने बोला कि x विल बी 0, सो दैट विल मेक इट अ कांस्टेंट नंबर ना, सो फिर d बचेगा एंड में सिर्फ, सो दैट इज नॉट आवर आइडिया, दैट इज अनदर वे. सो x तो ऑब्वियसली शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज टू ऑब्वियस, बट कोफिशिएंट्स के केसेस में a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. सो वी आर अवे विद दिस जनरल फॉर्म. Now let us take an example of a polynomial which is p of x is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. So this is it a cubic polynomial? Yes, it is cubic because px has degree 3. So it is clearly completely visible that it has degree 3, so it is cubic. Now how we find zeros of this polynomial? First of all, tell me how many zeros exist for it. How many zeros? कितने zeros होंगे इस polynomial के, cubic polynomial में कितने? Very good, 3 zeros. There will be 3 zeros to this polynomial. Why? Because degree is 3, therefore zeros are 3. So degree or zeros का relation we are aware about it कि it is supposed to be, say it is equivalent, मतलब it is equal. What is the whatsoever is the degree, the same will be the number of zeros of that polynomial. They may repeat, they may not repeat, but zeros are directly proportional to the is equal to the degree of the polynomial. So we are going to find 3 zeros of this polynomial. If you remember in 9th class what you used to do, there's a way of doing it. We find first zero by value putting method. So value putting method is we'll imagine that we'll consider some of the numbers to be zeros and we'll put them into the polynomial and we'll check whether the value is zero, because zeros का काम क्या है, polynomial को zero कर देना. So once we'll put the value, और अगर हमारा जो px है वो zero आ जाए, so we'll say that this polynomial जो px है ये उसका zero है. So we'll find those numbers. So वो numbers कहाँ exist करते हैं, वो कौन से number होंगे, that is also a method, there's also way to look at it. You need to focus on factors of this constant term. इस polynomial में constant term कौन है? 3 है या नहीं? Agreed everyone? 3 है. You have to find which is the constant term which is without the coefficient. फिर आप उसके factors करके देखेंगे. एक है 1 into 3 हो सकता है, और कोई factor हो सकते हैं 3 के, 1 और 3 के अलावा? वन और 3 के अलावा कोई और फैक्टर हो सकते हैं? नहीं. So what we have seen here, the 1 and 3 will surely be zero, maybe zeros of this polynomial. Sorry, it is minus 3. Sorry, it is minus 3 na, number is minus 3. So what are the possibilities for minus 3? बताओ. -1 -3. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 और -3. ये दो पॉसिबिलिटीज हैं. एग्री? द नंबर इज -3. इफ यू लुक एट क्लोजली, the number which is here is -3. So we are looking for -3. What are the factor of -3? -1 and 3, 1 and -3. So we'll check for all these 4 values whether the polynomial becomes 0 or not. So for
x इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक कौन सा ले, -1 ले, 3 ले, कौन सा, विच यू वुड लाइक टू टेक? So let's start with 1 first, then we'll see for -1. So p of 1 अगर हम निकालें, so what we will do if we want to calculate p of 1, we'll straight away replace x with 1. हम x की जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे. Agreed everyone? So हम p of 1 निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, we'll put x equals to 1 और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x को 1 से रिप्लेस करेंगे. बताइए आगे फटाफट. यहाँ कितना आएगा, 3 इंटू 1 का क्यूब 3, वेरी गुड. 5 इंटू 1 का स्क्वायर इज 5, 11 इंटू 1 इज 11, -3. टेल मी, +3 -3 cancels, so how much is the value? -16. So हमने क्या चेक करा, p of 1 is not equals to 0. Here p of 1 is not equals to 0, so x equals to 1 is not a 0. ये px का 0 ही नहीं है. एग्री? अब किसके लिए चेक करें? हाँ, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, हम चारों के लिए भी चेक कर सकते हैं, बट वी आर लुकिंग फॉर 1 ओनली. ठीक है, हम सिर्फ एक के लिए चेक करेंगे. देखना -1, समटाइम व्हाट हैपन इज यू कैन लुक, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी, मतलब आपको कैलकुलेशन ईजी लगती है एंड यू कैन मेक इट थ्रू कैलकुलेशन, जस्ट ऑब्जर्व एंड सी कि -1 रखने पे कितना आएगा. सो सम ऑफ यू कैन ट्राई लाइक डायरेक्टली लाइक दिस, p of 1, so 1 का क्यूब, -1 का क्यूब विल बी माइनस, तो दिस इज -3 डायरेक्टली. Square of -1 will be 1 and this will remain 5 as it is. Now see, look at 11, -11 multiply x, और x क्या है हमारा इस केस में, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर x इक्वल्स टू -1 के लिए चेक करें तो +11 हो जाएगा और -3 एज इट इज है. अब बताइए, सारी टर्म्स नेगेटिव है 11 को छोड़ के, तो सारी टर्म्स का सम करिए, -3 एंड -5 विल गिव यू माइनस का 11, isn't it? मिलेगा -11. -3 -5 एंड -3 विल गिव यू -11. +11 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और दोनों को सॉल्व करने पे क्या आया, 0. सो हमने क्या देखा, x इक्वल्स टू -1 क्या है इस पॉलिनोमियल का, बिल्कुल -1 ने इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दिया. सो x इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ px. एग्री एवरीवन? अब x इक्वल्स टू -1, हमें सिर्फ एक ही चाहिए था. वाई वी वांटेड वन ऑफ द जीरोस, सो दैट, देखो हमें ये पता है कि जैसे ही हमारे पास एक 0 आया तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं इस पॉलिनोमियल का, बहुत बढ़िया, वी कैन फाइंड आउट फैक्टर इजीली. और फैक्टर आते ही हम पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, फिर डिवाइड, क्या कर सकते हैं, डिवाइड. बट वी अर्लियर यूज्ड टू डू, हम सीधा पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, है ना. तो करें. सो फैक्टर क्या बना यहां से, टेल मी द फैक्टर, x + 1. बहुत बढ़िया. सो नाउ वी हैव फैक्टर. तो फैक्टर का काम क्या होगा, पॉलिनोमियल को इजीली डिवाइड कर सकता है. So we'll divide this px by x + 1. Okay. Now जैसे हमने बाई क्वाड्रेटिक में किया था, so now divide p of x by x + 1. करें शुरू. So x + 1, what was our polynomial, 3x क्यूब -5x² -11x -3. सो कैसे कराया था, याद करिए. फर्स्ट टर्म इधर से लेंगे, फर्स्ट टर्म इधर से लेंगे. बताइए क्या क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, 3x².
तो अब 3x² से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट फर्स्ट टर्म विल बी 3x क्यूब, सेकेंड टर्म विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 3x², सो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज प्लस का 3x²। आई थिंक आपको पता है ना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3x² को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास आया 3x³ प्लस 3x², जो कि हमने यहाँ लिख दिया है ना। ये तो करा है हमने, यहाँ पर लिखा है जो सॉल्व करा है। अगला स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग। तो ऑन सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिला, ये तो कैंसिल ओवर हो गए। व्हाट अबाउट दिस, -5x²। अब 3x² का साइन क्या माना जाएगा, माइनस। सो बोथ आर नेगेटिव, सो आई एम श्योर मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, बट कितने x² नेगेटिव मिलेंगे, 8। कितने मिलेंगे, 8, बिकॉज 5x² इज नेगेटिव, माइनस का 5x² है और माइनस का ही 3x² है, दैट्स वाई माइनस का 8x²। गेटिंग माई पॉइंट। अब 11 को नीचे ले आते हैं, -11x एज इट इज नीचे आ गया। अब करते हैं, अब किस को लेना है, -8x² को डिवाइड करना है x से, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, बचे क्या, बहुत बढ़िया, -8x। सो अब यहाँ क्या करने वाले हैं आप, आपका यहाँ पर x प्लस 1 एज इट इज लिखा हुआ है, उसे -8x से आप मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, -8x² और अंदर क्या आएगा, माइनस का 8x, यही वैल्यू आने वाली है। तो यही वैल्यू हम एज इट इज ऊपर लिखेंगे। सो डायरेक्ट लिखेंगे -8x² and plus -1 in 1 into -8x will give you -8x. Now let's add them. सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, साइंस ऑपोजिट, ऑपोजिट कर दीजिए साइन, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एक्चुअल में जो ये पोजीशन बनी हुई है वो ऐसी बनी हुई है कि ऊपर वाली टर्म में से आप नीचे वाली टर्म को माइनस करने वाले हैं। I have earlier told you, just repeating the steps. So this will be plus का 8x² and this will be plus का 8x, वही हमने यहाँ करने की कोशिश करी है। ठीक है क्लास, I hope I am making sense, you are getting it now. So बताइए अब रिमाइंडर क्या आएगा, what will be the remainder? These got cancel because ऊपर है माइनस का 8x², नीचे है प्लस 8x², इधर क्या बचेगा बताइए, कितने x, पहले तो बताइए प्लस के माइनस के, माइनस की वैल्यू बचेंगी बिकॉज माइनस का 11x इज बिगर देन 8x, सो माइनस की वैल्यूज आएंगी, बट कितनी आएंगी, बहुत बढ़िया 3। अब ऊपर से हम किसे ले आएंगे यहाँ पर नीचे, एग्री, -3 नीचे आ गया अपना। अब हम -3x -3, सो हम -3x को x से ही डिवाइड करके चेक करेंगे तो अपने पास क्या बचा, so the whole bracket will be multiplied by -3 now, so we will get minus of 3x minus of 3, opposite sign, so -3x ऊपर plus 3x नीचे, got cancel over, -3 ऊपर plus 3 cancel over, remainder is 0. Now using division lemma आप क्या लिख सकते हैं px को, so p of x equals to gx into qx plus rx, और यहाँ पे आपको पता है rx 0 आया है, सो आपका gx क्या था, x plus 1, qx आप क्या लाए हैं 3x² minus 8x minus 3, और rx तो 0 है ही, सो वी नॉट सपोज टू गोना राइट इट, सो चलो लिख लेते हैं, आप लोग कह रहे हो तो प्लस 0, फिर वी आर लेफ्ट विद x plus 1, देखो एक तो फैक्टर में मिला हुआ है, ये जो 3x² minus 8x minus 3 हम इसलिए लाए बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने ज़्यादा आसान लगते हैं
with the method of splitting the middle term. So what आप 8 मतलब जो -8x है उसे किस में split करेंगे, just tell me. So for this we will multiply these two number, a और c को multiply करेंगे, मतलब coefficient of x square will be multiplied with the constant term. So you have these two terms, 3 multiply -3, which will give you -9. So you have to factorize -9 in such a manner that you will get -8 by solving the terms. Tell me -9 के क्या factors ले. -9 into 1 will give me -9. Good. क्या -9 और 1 को ऐड करने पर मुझे -8 मिलेगा? यस, बिल्कुल. सो मेरी मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करूंगा किस में? आई विल बी स्प्लिटिंग माई मिडिल टर्म इनटू, very good, 3x square as it is, -8x will be replaced by -9x plus x. ये सबको समझ आया? So we have replaced -8x with -9x plus x. -3 is waiting for its turn. अब हम किस किस को सॉल्व करेंगे? These two and these two. We'll take the common factor out of them. So x plus 1 still waiting for its turn. यहाँ पर देखेंगे तो 3x is common. Now x minus 3 is left over. Here we can only take 1 as common. We are left with x minus. ठीक है, यहाँ पर फैक्टर बचा आपका x plus 1, इधर बचा x minus 3, दोनों के पास है तो we'll take it outside. So we'll left with 3x plus 1. आप फटाफट से मुझे देखते ही आप जीरोस बता सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं. Therefore zeros of px are, पहला x plus 1 है तो जीरोस क्या हो गया? -1. x minus 3 है तो जीरो क्या हुआ? x इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रख के बताइए अगला क्या बचेगा? बहुत बढ़िया क्लास. सो यू हैव फाउंड आउट ऑल द जीरोस विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर्स. सो हमारा आज सेकंड पोर्शन भी हो गया. फर्स्ट पोर्शन वाज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ cubic polynomial. Now we'll go to another concept which is called establishing the relationship between the zeros. So the topic is, it is in continuation. Okay, so अब हम क्या करने वाले हैं? रिलेशनशिप. किस किस में रिलेशनशिप देखने वाले हैं? बिटवीन द zeros and coefficient of polynomial. ठीक है, हमें ये करना है. सो हमें अब पहले हम जेनरिक फॉर्म पे वापस आते हैं. व्हाट इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल? ax cube plus bx square plus cx plus d, where a should not be equals to 0. ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे, जिन्हें हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया अल्फा, बीटा एंड गामा. सी दिस सीम्स टू बी लाइक y, पर आप इसे थोड़ा ध्यान से टिल्टेड और कर्व y बनाएंगे, विच मेक्स अ डिफरेंस कि हाउ गामा इज डिफरेंट फ्रॉम y. ठीक है, सो दीज आर साइंटिफिक ग्रीक लेटर्स हैं ये, जिन्हें हम यूज करते हैं. अल्फा, बीटा, गामा हम 3 जीरोस मान रहे हैं. अगर आप ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें तो कैन यू टेल मी व्हाट आर अल्फा, बीटा, गामा ओवर देयर? अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में किया और यहाँ से दिख भी रहा है. सो अगर हमको कि तो ये एक तरीके से इसे अल्फा लिया जा सकता है, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. इन अर्लियर एग्जाम्पल we have found -1, 3 and -1/3 as zeros of the polynomial. So these can be considered as alpha, beta and gamma. Agreed everyone? So there are 3 relations. First is sum of the zeros. क्या है पहला? Sum of the zeros.
इट इज कंप्लीटली सिमिलर इन द मैनर जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए किया था, एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस. सो विल गेट अल्फा, हमें मिला बीटा एंड देन गामा. ये तीनों जीरोस का जो सम होता है वो होता है माइनस बी बाय ए. ध्यान से देखिएगा, माइनस बी मतलब बी कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट, बी किसका कोफिशिएंट है, बहुत बढ़िया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये चीजें ध्यान रखेंगे. ये माइनस बी एंड ए गेट चेंज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना. तो आप कोफिशिएंट से हमेशा ध्यान रखेंगे. सो यहाँ माइनस बी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. सो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस. देन उसके बाद आपकी ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. Means if I multiply alpha, beta and gamma, I'll be getting minus d by a. सी यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है. जब हम अल्फा इंटू बीटा करते थे तो कांस्टेंट टर्म बाय फाइनल मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता था. बट यहाँ पर क्या हुआ है, कांस्टेंट टर्म तो आई है बट वो नेगेटिव आई है इस बार. कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस डी बाय ए. ठीक है. Now third relationship which we see here is sum of product of two zeros taken together. तो ध्यान से समझिएगा, स्प्लिट करके समझिएगा. सम करना है आपको किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन टुगेदर. ठीक है ना. दो जीरोस को साथ में लीजिए दो दो करके. तो अल्फा बीटा साथ में लिए मैंने, फिर मैंने बीटा गामा साथ में ले लिया, फिर बचा कौन, थर्ड पेयर कौन सा बचा, अल्फा और गामा. तो इन सब का सम कितना आता है, C बाय ए. और ध्यान से देखिएगा, C इज नॉट कांस्टेंट टर्म, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x और A इज कोफिशिएंट ऑफ, समझ आया तीनों रिलेशनशिप. Let us verify these relationship with our example which we taken earlier. So what we had the example was, हम इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करके देखेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल था. इनिशियली व्हाट वी स्टार्टेड विद, वी हैड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ना. उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही हमने उसके जीरोस निकाले. अब उसके जीरोस के बीच में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट वी हैड वाज, there was a polynomial called px whose zeros were, क्या निकाले थे हमने जीरोस, 3, -1 एंड -1/3. अब इसके लिए हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई द रिलेशनशिप. कोफिशिएंट. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. करें शुरू. पहले तो हमें ए बी सी डी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. क्या है यहाँ पर, ए बताइए फटाफट से. व्हाट इज ए, बताइए फटाफट. पॉलिनोमियल को देखिए और ए बताइए क्या है. 3. व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, very good, and d is -3.
So we have all the values. What about alpha, beta, gamma? Alpha is equals to 3, beta is equals to -1, and gamma is equals to -1/3. We have all the zeros. So let us start verifying the relationship. पहला relationship है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b/a. तो ले लीजिए पहले LHS. टेकिंग LHS, क्या है अपने पास LHS में? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. Let us put the values. 3 -1 -1/3. सॉल्व करिए, कितना आएगा फटाफट से? 2 - 1/3. This will give you 6 - 1/3, which will give you 5/3. Am I correct? सही है. अब हम क्या लेंगे? RHS ले लेते हैं. क्या कहती है RHS? -b/a. व्हाट इज -b? क्या है? माइनस ऑफ -5. b -5 है ना. सो माइनस तो ऑलरेडी हमारे पास साइन है, पर b कितना है? -5. व्हाट इज a? a क्या है यहाँ देखो, ये रहा 3. बहुत बढ़िया. तो माइनस और माइनस इंटू -5 कितना आया? माइनस ऑफ -5 इज ऑलवेज +5. वो पूछ रहा है आपसे नेगेटिव साइड ऑफ -5 क्या मिलेगा आपको? 5. सो पॉजिटिव 5/3. R LHS और RHS बराबर आ गई. Here LHS equals to RHS. Hence verified. फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई होगी. एनी डाउट टू एनीवन? किसी को पूछना है? आगे बढ़े, अगला रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं फटाफट से. सो नेक्स्ट इज आर सेकेंड वाला ले लेते हैं, विच इज टू वेरीफाई. हमें क्या वेरीफाई करने का है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a. वी आर गोइंग टू चेक दिस. ठीक है. प्रोडक्ट वाले में याद रखिएगा हमेशा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म ऊपर होती है, तो अगर आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, प्रोडक्ट डील्स विद कांस्टेंट टर्म, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है. सो यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास है, तो हम LHS RHS दोनों ले लेते हैं फटाफट से. टेकिंग LHS. बताइए क्या कह रही है आपकी LHS? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. यू कैन ऑल्सो ट्राई साइड बाय साइड ना, साथ साथ करते रहिए. अल्फा बीटा और बीटा गामा क्या है? अल्फा वॉज 3, बीटा वॉज -1 प्लस बीटा वॉज -1 एंड गामा वॉज -1/3 plus gamma was -1/3 and alpha was 3. I think last value is not visible to you all. So this was beta into gamma was -1/3. In the next line we can write gamma was -1/3 and alpha was 3. Any terms which is getting cancelled? Here it is getting cancelled. So 3 into -1 is -3. Check here, -1 into -1/3. So that will be positive 1/3. Here what will be left with? Plus into -1 will give you -1. See, -3 minus 1 will give you -4 plus 1/3.
फिर चेक एलसीएम लेंगे हम, सो इट विल बी माइनस, कितना आ रहा है डिफरेंस इनका, -11/3, इज इट? RHS ले लें अब। What is RHS has to say? C/A, डायरेक्ट ध्यान से देखो C कितना है, let's go to the question above. C is -11 and A is 3, डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है सिर्फ, -11/3, इजी सिंपल क्लास। LHS equals to RHS, hence verified. Let's establish the third relationship, which is product of zeros. So what was product of zeros? We have to verify alpha, beta and gamma is equals to minus D by A. Taking LHS, let's take LHS, which is alpha, beta and gamma. It will be very easy for us to solve फटाफट से. So alpha was 3, beta was -1 and gamma was -1/3. So the 3's get cancelled over, -1 into -1 will give you, but we'll get, बहुत बढ़िया. अब RHS ले लेते हैं. What is RHS? -D by A. चलिए फटाफट जाते हैं ऊपर, देखते हैं D और A क्या थे. What is D? What is A? दोनों 3 हैं. सो माइनस तो हमारा फॉर्मूला का साइन, D is -3 and A is 3. So what we'll get? Minus minus 3/3, which cancels and give you 1. So what has happened here? LHS RHS अलग आ गई. LHS RHS अलग आ गई ना, ये सेम आई है. Yes, here LHS is equals to RHS, hence verified. See, so you have established all the 3 relationships. Which were the 3 relationships? Let us go back and see them. We started initially, हमने क्या किया था? We had a cubic polynomial. हमने उसके zeros निकाले. हमने पहले सिर्फ एक जीरो निकाला, उसके बाद हमने उसके जीरो की हेल्प से उसका फैक्टर निकाला. फैक्टर के बाद हमने डिवीजन की हेल्प से अनदर फैक्टर निकाला, which was quadratic. देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें स्प्लिट करके मिडिल टर्म से अनदर फैक्टर निकालने आते हैं, जिसकी हेल्प से हमने तीनों फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकाल लिए. जैसे ही हमें फैक्टर्स मिले, वी वर एबल टू फाइंड द जीरोस, एंड दैट वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के आराम से तीनों जीरोस निकाल लिए. नाउ द अनदर थिंग वाज, देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूबिक polynomials zeros and the coefficients, and it is available for every polynomial. In most of the polynomial, these relationship do exist. So in quadratic also we saw the relationship. कैसे हमने relationship establish की थी? So cubic की relationships क्या कहती हैं कि sum of zeros is equals to minus b by a, where b is coefficient of x square and a is coefficient of x cube. Then we moved ahead. This is another relationship which we are supposed to verify.
sum of zeros 2 taken at a time. Then we reach to this, where is product of zeros is equals to minus d by n. And what we verified all these relationship, these are completely satisfied. So with this we have completed our topic, what are cubic polynomial, how to find zeros of cubic polynomial, and establishing the relationship between the zeros.